Good morning, all of you. I am Samreen Taranum from BSc IT first year. Today I am present here to give a presentation on the topic of Intel 8086 microprocessor, function unit of Intel 80 microprocessor. As as we know, the Intel 8086 provides two function units, execution unit and bus interface unit. In execution unit, data register, four general purpose register, ALU, control unit, and 18-bit flag register are there. Execution unit is used to help arithmetic and logic part of calculation unit with the help of CPU. It used to decode or execute the instruction. Execution unit has own control unit to help to perform the internal unit. 1 minute. Yes, sir. In execution unit, ALU general per 16-bit general per register, 16-bit flag register, and 1 minute, control. 1 minute. ये Okay, स्लाइड में फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना। बार बार इस चीज को नोटिफाई कर रहे हैं कि सर फॉन्ट का मैंने 40 प्लस रखा है सर, 40 और 30 प्लस रखा है मैंने साइज सर। थोड़ा बड़ा रखिए, क्योंकि ये विजिबल नहीं रहता है स्क्रीन पर। अगर इसको प्रोजेक्टर से आगे से जिसको ओके सर। पीडीएफ कम हो गया क्या? सर मैंने बड़ा रखा था सर, बहुत बड़ा रखा ओके था ओके, कंटिन्यू। ओके सर। ALU used to handle arithmetic and logical operation like plus, minus, into, or, and odd. General purpose register are 8 general purpose register like AL, AH, BL, BH, CL, DH. Divided into two part, 8-bit register and 16-bit register. AH, AL, BH, BL, CH, DL, and DH. Both are 8-bit 8-bit data register AL, BL, CL, and DL, and in 16-bit AH, BH, DH, and DH. And means all we use a 16-bit, properly 16-bit register is used to AX, BX, and DX, and CX. AX register is accumulator register, is used to operate arithmetic operation. BX register used to base register to hold the base address of the data segment. And CX register is to counter register used to help loop instruction in loop counter. And DX register used to data register to hold the input output port address of input output instruction. At last, I am inviting my friend Khushbu Kumari to conclude this presentation. Khushbu? Yes. Today in presentation in topic flag register. Flag register is a 16-bit register. Flag register is a 16-bit register that looks like a flip-flop. That is a storage in data accumulator register, and its status is changed, and it is flag register is divided by two parts, a first conditional and second control flag. Conditional flag, it is determined with the result of the execution by the last arithmetic or logical instruction. Logical and belonging in the list of the conditional flag. First, carry flag. This flag indicate an overflow condition for arithmetic operation. When carry flag is out, जब carry flag out रहेगा तो 1, जब carry flag enable रहेगा तो 0 होगा. Auxiliary flag, when an operation is processed at ALU at result in a carry and grow from lower level to upper level.
Then this flag is set, that is carry given by the 3-bit to D4 is auxiliary flag. For example, डिसेबल मोड में कैरी फ्लैग 0 होगा और इनेबल मोड में कैरी फ्लैग एक्सिलरी फ्लैग 1 होगा। जैसे एग्जांपल में फॉर हैं थर्ड प्रायोरिटी फ्लैग, दिस फ्लैग इज यूज्ड टू इंडिकेट रिजल्ट ऑफ इवन एंड ओड number, that is the even number of 1, then priority flag is set. When the odd number of 1, so then priority flag is reset. Zero flag, this flag is set to 1 when the result of arithmetic or logical operation is set to be 0, else it is set to 0. Sign flag, this flag holds the sign of the result, that is when the result of the operation is negative, then the sign flag is set to 1, otherwise set to 0. Over flag, this flag represents the result when the system capacity is accessed. Second, control flag. Control flag controls the operation performed by the execution unit. List of the control flag. First, trap flag. It is a single step process control that allows the user to execute single instruction at a time for division. If it is set, then the program could run in a single step mode. Interrupt flag. It is an interrupt enable and disable flag. Then enable interrupt enable. Then interrupt flag is 1. Then interrupt flag disable. Then interrupt flag is 0. Direction flag. It is used in a string operation where the string bytes are set and accessed from the higher memory address to the lower memory address and vice versa. Thank you. Second presentation is Rahul. Good morning, everyone. I will discuss about the next topic is BIU, that stands for Bus Interface Unit. Bus Interface. ना पढ़ ली था ना पढ़ ये इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बाहर अदर डिवाइस को कनेक्ट करता है, जो बस इंटरफेस यूनिट होता है। एंड ये डेटा को रीडिंग, राइटिंग, फेचिंग और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन को लाने में हेल्प करता है। जो जितना भी इंस्ट्रक्शन होता है सब इस इंस्ट्रक्शन क्यू में होता है। ये क्यू फीफो पे काम करता है, जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एएलयू को जो डेटा एएलयू को सेंड करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्यू। अभी जैसा कि मैंने बता दिया हूँ कि इंस्ट्रक्शन क्यू जो भी डेटा हम लोग रीड राइट करते हैं सभी इंस्ट्रक्शन क्यू में होता है। और इसका करंट लोकेशन जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आता है जो फेच होने वाले रहता है, इसी प्रोसेस को हम पाइपलाइनिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट जैसे इसका कुछ सेगमेंट रजिस्टर है, 4 सेगमेंट रजिस्टर, जैसे CS स्टैंड फॉर कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट इज एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन वेयर द प्रोग्राम आर स्टोर्ड। एंड डेटा segment in short form DS, data segment that it contain data which used by program. And SS, it stands for stack segment. Stacks
A stack segment defined as a memory used for the stack. And next is ES. ES stand for extra segment. Extra segment, similar data segment where additional data is stored. This is instruction pointer. It is a 16-bit register. It has 16-bit length also. Thank you. So what do you mean by, what is the work of instruction pointer? What types of information hold by the instruction pointer? Rahul, बताइए. Yes, sir. What types of information hold by instruction pointer? Is there any difference between program counter and instruction pointer register? I don't know, sir. I don't know. The rest of the members? सर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सर नेक्स्ट आने वाले इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है. नेक्स्ट आने वाले इंस्ट्रक्शन का क्या रखता है? वो इंस्ट्रक्शन को रखता है, डेटा रखता है, एड्रेस को सर, उसकी एड्रेस को. तो ये पीसीआर और इसमें कोई डिफरेंस है या बोथ आर सेम? नो सर, दोनों डिफरेंट चीज है सर. ये वो पीसीआर को इंस्ट्रक्शन को रखता है सर, तो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को रखता है. ये नेक्स्ट को रखता है सर, आने वाले एड्रेस को रखता है. और एक कोई और पार्टिसिपेंट है ना, खुशबू कुमारी? यस सर. बताइए, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और पीसीआर में कोई डिफरेंस है? यस सर. क्या है? इंस्ट्रक्शन पॉइंट होता है जो मतलब कि जैसे कि हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो यह नेक्स्ट एड्रेस को यह एग्जीक्यूट कराता है. और पीसी भी है जो वह मतलब कि जैसे कि हम लोग देते हैं फर्स्ट में ही जो एड्रेस यानी कि उसको वह एग्जीक्यूट कराता है. हॉरिजॉन्टल में ही रखिए, पूरा स्क्रीन पे आएगा. हॉरिजॉन्टल, आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल रखिए. हाँ, ये सही है. वर्टिकल रखें इसलिए नहीं दिख रहा. देखिए, बेसिकली इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एंड your program counter register both are same. In Intel 8086, the PCR is known as instruction pointer, and commonly PCR हम लोग discuss किए थे, that is common for any CPU. किसी CPU में PCR आपका जो है as a register, special purpose register use होता है जो next instruction to be executed in the system के address को hold करता है, and it keeps the track of the address of the next instruction to be executed in the computer, and it is automatically incremented. जैसे अगर हम एक चेयर यहाँ लगा दें, बोल दें ये पीसीआर है, ये इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है. अब इस चेयर पर क्या है कि ये चेयर जब खाली होगा तो इमीडिएटली दूसरा स्टूडेंट आके बैठ जाए, क्योंकि इस चेयर पर जो बैठेगा वही पहले बाहर जाएगा. तो एक चेयर को हम अगर जोन बना दें, पीसीआर जोन, तो वो चेयर पर इमीडिएटली आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट, जब तक स्टूडेंट यहाँ अवेलेबल होंगे उनको उस पर चेयर पर बैठ के ही बाहर जाना है. तो एक अगर स्टूडेंट बाहर जा रहा है, दूसरा उस चेयर को एलोकेट कर देगा. जैसे ही उस चेयर से दूसरा बाहर जाने के लिए उठेगा तो तीसरा आके उस चेयर पर बैठ जाएगा. इसका मतलब है कि ये कंप्यूटर को पाइपलाइन करने के लिए पीसीआर या इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रिस्पांसिबल होता है. बोथ आर सेम. यू आर डिस्कसिंग Intel 8086 रजिस्टर सेट because you are discussing the architecture of Intel 8086, and in the architecture of Intel 8086 the register set of Intel 8086 is used. So instruction pointer is the register, 16-bit register used in the same manner like a PCR, which we discuss as a program counter register. So both are same. Now anyone have... sir. Yes. सर पीसीआर में सर पाइपलाइनिंग होता है क्या सर? पीसीआर इज रिस्पांसिबल फॉर पाइपलाइनिंग, यानी कि पाइपलाइन इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन करने के लिए पीसीआर रिस्पांसिबल है. क्योंकि इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग का मतलब क्या है कि सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना. सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने का मतलब है कि थ्रूपुट बढ़ाना.
क्योंकि मैक्सिमम टाइम अगर सीपीयू बिजी रहेगा तो आउटकम भी उतनी हिसाब से जनरेट करेगा। अगर Yes, sir. सीपीयू आइडल स्टेट में जाएगा तो आउटकम अफेक्टेड होगा। तो इसलिए आपका जो पीसीआर है वो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। सर तो दोनों ही रजिस्टर सर पाइपलाइनिंग का काम करते हैं सर। दोनों मतलब सर पीसीआर और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सर। भाई तो बता दिए दोनों में डिफरेंस क्या है। इंटेल 8086 में स्पेसिफिक रजिस्टर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से जाना जाता है, जो इस काम के लिए इंस्ट्रक्शन को पाइपलाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉमनली हम लोग उसको प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर बोलते हैं, जो हर पीसीबी के स्टेटस में रहता है। आप जब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पढ़े होंगे, टास्क कंट्रोल ब्लॉक, यस सर, यस तो सर, पीसीआर इज वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पढ़े हैं ना। यस सर, यस सर, पीसीआर जो है वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक एट्रीब्यूट क्यों रहता है, क्योंकि अगर कोई प्रोसेस का सब प्रोसेसेस होगा तो वो सब प्रोसेसेस को पीसीआर ही एलोकेट करेगा वन बाय वन। जब आपका सब प्रोसेस, मान लेते एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम में 4 फंक्शन लिखे हैं, तो फंक्शन 1 2 3 4, ये फंक्शन 1 2 3 4 एग्जीक्यूट किसके थ्रू होगा, उस पीसीआर के थ्रू होगा। आपका पीसीआर, यस सर, प्रोग्राम कंप्लीट, आपका प्रोग्राम .c से सेव है। अब जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो प्रोसेस बनेगा, क्योंकि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन होगा। जब वो प्रोसेस बनेगा तो वो प्रोसेस के लिए पीसीबी जनरेट होगा। उस पीसीबी में उस प्रोसेस का स्टेट होगा, एट्रीब्यूट्स के रूप में आईडी होगा, प्रोग्राम काउंटर होगा, ठीक है ना। उसमें जो भी फाइल ओपन होगा, हेडर फाइल जो भी है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, उसका डिटेल्स होगा। ये पढ़े हैं ना पीसीबी में। यस सर, यस सर, Yes, sir. इसी तरह से आपका फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, that is one by one allocate for processing, because अगर ये एलोकेशंस पीसीआर के थ्रू नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो है जॉब जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा। तो एक के बाद एक आपके फंक्शन में, आपके प्रोग्राम में अगर 4 फंक्शन यूज हुआ है, 3 फंक्शन का आपने डिफिनेशन दिया, चौथा का डिफिनेशन नहीं दिया, तो इंटरप्टेड हो जाएगा, आपका Yes, आउटकम जनरेट नहीं होगा। तो आपको चारों को लिखना होगा। आप 2 तरह का अप्रोच पढ़े होंगे सी में, टॉप डाउन और बॉटम अप। मान Yes, लेते हैं Yes, कि sir. अगर आप डिफिनेशन को मेन के बाद दे रहे होंगे तो टॉप में मेन के पहले सबका प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन होना चाहिए। यस नॉट सर, ओनली Yes, लाइब्रेरी sir. फंक्शन, योर यूजर डिफाइंड फंक्शन आल्सो नीड टू बी प्रोटोटाइप डिक्लेयर्ड। जैसे देखते हैं कि अगर कोई प्रिंटफ स्कैनफ यूज किया है, हेडर फाइल स्टूडियो नहीं किया, तो फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप एरर देता है। तो Yes, उसी sir. तरह से यूजर डिफाइंड फंक्शन में भी कोई अगर प्रोटोटाइप आप डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिफिनेशन आप आफ्टर मेन कर रहे हैं, तो उसका आसान तरीका क्या है, यू जस्ट डिक्लेयर एंड डिफाइन द पर्टिकुलर यूजर डिफाइंड फंक्शन बिफोर मेन। तो दैट इज द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन अलोंग विथ डिफिनेशन। तो ये यस सर, सोल्यूशन हम लोग यही निकालते हैं कि फंक्शन के पहले ही उसको डिक्लेयर और डिफाइन दोनों कर दें। नहीं तो क्या, डिफिनेशन अगर मेन के बाद देंगे तो ऊपर में प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि हेडर फाइल इंक्लूजन इज द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन फॉर लाइब्रेरी फंक्शन। और जो आप प्रोटोटाइप डिक्लेयर, जो फंक्शन एक्चुअली प्रोटोटाइप का मतलब क्या है, इट इज द प्री इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंपाइलर दैट यू आर गोइंग टू यूज सर्टेन प्रोसीजर्स और फंक्शन विच इज अवेलेबल विद द इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो अगर प्रिंटफ स्कैनफ यूज कर रहे हैं तो प्रिंटफ स्कैनफ का फंक्शन तो आप डिफाइन कर नहीं रहे हैं, तो डिफिनीशन कंपेयर कहाँ से करेगा कि आपने प्रिंटफ स्कैनफ का सही फॉर्मेट यूज किया है, ये सिंटैक्टिकल चेक कैसे करेगा वो। तो उसके लिए कंपैरिजन करने के लिए उसको हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं, एंड दैट studio.h हेडर फाइल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन which is used by you. तो आफ्टर कंपैरिजन कंपाइलर कंफर्म दैट द कोड इज सिंटैक्टिकल, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, पीसीआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, और पीसीआर इज कॉमन नेम फॉर एनी सीपीयू, and instruction pointer is the unique name given to the specific register which is functioning in the same manner like PCR. And in Intel 8086 the PCR is named as instruction pointer, you can also say this। ऐसे भी बोल सकते हैं कि PCR में जो आपका Intel 8086 में जो PCR के जैसा एक रजिस्टर जिसका नाम दिया गया है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, किसी और का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है रिलेटेड? Yes, sir. कौन, बोलिए। Sir, what is base register and how to find the location of any data? Yes, Samreen, Rahul, and Khushbu. Repeat the Anyone? question. What is base register and give the example to find the location of any data?
बेस रजिस्टर क्या है और बेस रजिस्टर को यूज करके किसी भी एड्रेस को कैसे एलोकेट करते हैं, कोई एलिमेंट के एड्रेस को कैसे एलोकेट करते हैं, तो ये तो आप बता सकते हैं एरे के बेस पर। यस सर। बताइए, एक्सप्लेन करिए। यस सर, बता रहे सर। बेस रजिस्टर is used to these are base register in base register सर 8086 में सर एड्रेस रजिस्टर में जनरल पर्पस रजिस्टर में आता है सर। जैसे बेस रजिस्टर में हम जैसे कोई भी डेटा को हम टेम्परेरी होल्ड कर सकते हैं एड्रेस को एग्जीक्यूशन के लिए। जैसे अगर हम इंट A5 लिया तो जैसे इंट A5 लिया सर तो वो उसमें 5 मेमोरी एड्रेस मेमोरी स्पेस आ गया सर उसमें। सर अगर हम अगर सी यूज कर रहे हैं मतलब कि सी, तो उसमें तो 2 बिट का सर ये आएगा मेमोरी लोकेशन होगा। जैसे अगर हम A0 A1 A2 A3 A4 हुआ तो उसमें 2 3 अगर हम जैसे A0 में 2 लिए और A3 में A1 में 3 1 5 10 तरह लिए सर, तो A0 सर 1 अगर 1000 है तो A1 होगा सर 2, मतलब कि 2 बिट आगे बढ़ेगा सर। 2 बाइट, बिट नहीं। यस सर, 2 बाइट सर नॉर्मल रजिस्टर में सर। और हमको 8 बिट में हमको अगर मूव करना है तो जैसे मूव AL to BL करेंगे 8 बिट रजिस्टर में सर। और अगर 16 बिट हम यूज करेंगे तो मूव AX to BX करेंगे सर। मतलब बेस रजिस्टर इज यूज एज ए कंपोनेंट, यूज एज Yes, sir. एड्रेसिंग एलिमेंट टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ एनी Address of any execution instruction. It is used to find effective address, sir. yes, it is used to find offset and effective address of any element, ठीक है ना। and Yes, sir. base register, or you can say base address, is the addressing element. It is used as an addressing element for finding the address of any element. Once you have the starting address, then you can use that starting address to find out the address of any element of the list. Any other question? Stop sharing. Excuse me, sir. हाँ बोलिए। What is the function of BIU of 8086 microprocessor? बताइए। Rahul, please answer this question. फिर से क्वेश्चन बोलो। What is the function of BIU in 8086 microprocessor? फंक्शन Function of BIU. ओके, BIU का फंक्शन बताना है, बता दीजिए क्या फंक्शनिंग करता है BIU। BIU का भी फंक्शन है कि सर ये डेटा को ले जाता है और लाने और ले जाने के लिए वर्क करता है। So what are the main register used in BIU? सेगमेंट रजिस्टर, Segment register, and along with segment register there is need of IP also. क्या सर? IP का जरूरत, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का जरूरत होता है या नहीं? Yes, sir. क्योंकि जब आप IP सेगमेंट रजिस्टर की बात करेंगे तो उसमें आपका कोड आएगा, आपका डेटा आएगा। यस सर, यस सर, CS, DS, SS, ES ये सभी आएगा। तो इसके बाद आपको PCR की भी जरूरत होगी, क्योंकि आपका PCR क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन क्यू जो वहाँ 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू है, वो इंस्ट्रक्शन क्यू में डेटा लोकेशन का काम PCR का ही होगा, IP का होगा। Yes, एक sir. के बाद एक Yes, sir. इंस्ट्रक्शन क्यू में आपका डेटा भेजेगा ताकि आपका CPU को प्रोसेसिंग यानी एग्जीक्यूशन यूनिट में प्रॉपर ढंग से इंस्ट्रक्शन अवेलेबल होता रहे और आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन रहे थ्रू आउट द सिस्टम,
मतलब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। ठीक है, ओके। नाउ पीयूष कुमार सिंह, शेयर योर प्रेजेंटेशन। Excuse me, sir. बोलिए। Can I leave, sir? यस यू मे। ठीक है, पीयूष कुमार सिंह। तुम शेयर कर सकते हो, पोस्ट बनाया तुमने। नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा है।